سابق DGISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کا کورٹ مارشل 14 سال قید بامشقت کی سزا سنا دی گئی۔ فیض حمید سیاسی سرگرمیوں میں ملوث رہے، ان کے خلاف آفیشل سیکریٹ ایکٹ کی خلاف ورزی بھی ثابت ہوئی۔ ان پر اختیارات اور سرکاری وسائل کے غلط استعمال اور لوگوں کو نقصان پہنچانے کا الزام بھی ثابت ہوا۔ ISPR کے مطابق سابق لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید پر سزا کا اطلاق آج سے ہوگا۔ فیصلے کے خلاف انہیں متعلقہ فورم پر اپیل کا حق ہے۔ آرمی ایکٹ کے تحت فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی کا آغاز گزشتہ سال 12 اگست کو ہوا تھا، جو 15 ماہ جاری رہا۔ فیض حمید کو اپنی پسند کی دفاعی ٹیم کے حقوق فراہم کیے گئے۔ قانون و انصاف کی بالادستی کے لیے آج پاکستان کے لیے بہت بڑا دن ہے۔ فوج میں خود احتسابی کے مضبوط عمل کی مثال سب نے دیکھ لی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی ARY نیوز سے گفتگو، کہا فیض حمید ریٹائرمنٹ کے بعد قدغن کے باوجود PTI کے سیاسی مشیر بن گئے تھے۔ انہیں ٹاپ سٹی کیس میں بھی سزا ہوئی، ان کے خلاف مزید تحقیقات بھی ہوں گی۔ ان کے 9 مئی جیسے کیس میں بھی ملوث ہونے کے شواہد ہیں۔ رانا ثناء اللہ نے کہا فیض حمید جن کے ساتھ سیاسی سرگرمیوں میں ملوث تھے ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی، جو 9 مئی میں ملوث ہیں ان کے خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایکس پر لکھا قوم برسوں تک فیض حمید اور قمر جاوید باجوہ کے بوئے ہوئے بیجوں کی فصل کاٹے گی۔ طاقت اور اقتدار کو اللہ کی عطا سمجھ کر مخلوق کے لیے استعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ ملک کے خلاف کام کرنے والے پر زمین تنگ کر دی جائے گی۔ پورے پاکستان کو پیغام چلا گیا، کوئی قانون سے بالاتر اور پاکستان سے بڑا نہیں۔ سینیٹر فیصل واڈا کی ARY نیوز سے گفتگو، کہا فیض حمید کو سیاست اور بغاوت کی سزا ملی ہے۔ کریڈٹ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر کو جاتا ہے۔ فیصل واڈا نے ایکس پر لکھا فیض حمید کو 14 سال قید ابتدا ہے، یہ سزا صرف ایک کیس اور 4 الزامات میں ہے۔ ابھی تو فیض حمید اپنے ٹرائل میں 9 مئی کے شواہد اور بانی اور دیگر کے خلاف گواہی دے رہے ہیں۔ 9 مئی والے استعفے دینے کے باوجود نہیں بچیں گے، جو 75 سال میں نہیں ہوا۔ اس انصاف کی بنیاد سپہ سالار نے اپنے ادارے سے ہی رکھی۔ پاکستان کے خلاف بیانیہ چلانے والوں کو قانونی طریقے سے نشان عبرت بنا دیا جائے گا۔ ملاقات کا وقت ختم، سہیل آفریدی کی 10ویں کوشش بھی ناکام۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی بانی PTI سے ملاقات نہ ہو سکی، سہیل آفریدی کو ناکے پر روک دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے پولیس افسر سے کہا اپنے ہی شہریوں کے لیے راستے بند کر دیے گئے، میں وزیر اعلیٰ ہوں، کیوں جانے نہیں دیا جا رہا؟ آپ کو کون غیر قانونی احکامات جاری کرتا ہے؟ صوبائی حکومت کے ترجمان شفیع جان کا کہنا ہے بانی PTI کے کروڑوں ووٹر ہر زیادتی یاد رکھیں گے۔ اڈیالہ جیل کے اطراف سیکیورٹی سخت، راولپنڈی میں دفعہ 144 میں 17 دسمبر تک توسیع۔ PTI ارکان اسمبلی پارٹی کے سوشل میڈیا ونگ پر برس پڑے۔ تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کے گزشتہ روز ہونے والے اجلاس کا احوال سامنے آ گیا۔ اجلاس میں کچھ ارکان اسمبلی نے علیمہ خانم پر بھی تنقید کی۔ MNA سے کہا ہم اڈیالہ پہنچ جاتے ہیں، سوشل میڈیا والے نہیں آتے۔ گھروں میں بیٹھ کر یا بیرون ملک سے تنقید کرنا آسان ہے۔ راجہ ناصر عباس اور سلمان اکرم نے بانی PTI کی بہنوں کو دھرنا ختم کرنے کا کہا۔ بانی کی بہنوں نے دونوں کی بات نہیں مانی اور بدمزگی ہوئی۔ چند MNAs نے بانی کی بہنوں کی حمایت کی اور دھرنا درست قرار دیا۔ جھوٹے الزامات لگانے والے یوٹیوبر عادل راجہ نے بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد نصیر سے معافی مانگی۔ ایکس پر لکھا لندن کی عدالت نے مجھے راشد نصیر کو 50,000 پاؤنڈ ہرجانہ ادا کرنے کا حکم دیا۔ عدالت نے مجھ پر قانونی اخراجات بھی ادا کیے۔ 14 سے 29 جون 2022 تک میں نے متعدد ہتک عزت کے الزامات لگائے۔ راشد نصیر پر لگائے گئے جھوٹے الزامات کا میں دفاع نہیں کر سکا۔ عدالت نے قرار دیا میرے راشد نصیر پر لگائے گئے الزامات جھوٹے تھے۔ آج لندن ہائی کورٹ نے تحریری فیصلہ جاری کیا۔ عادل راجہ 28 دن تک فیصلے کا خلاصہ تمام پلیٹ فارمز پر نمایاں جگہ پر لگانے کا پابند ہوگا۔ عدالت نے عادل راجہ کو جھوٹے دعوے دہرانے سے روکنے کے لیے سخت ہدایت جاری کر دی۔ کہا عادل راجہ نے حکم نہ مانا تو توہین عدالت، جرمانہ اور جیل ہوگی۔ عادل راجہ کو تمام ادائیگیاں 22 دسمبر تک لازمی کرنا ہوں گی۔ قوانین کی خلاف ورزی پر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے خلاف ایکشن ہوگا۔ حکومت کی وارننگ، وزیر مملکت طلال چودھری اور بیرسٹر یقین نے ملکی اور غیر ملکی صحافیوں کو بریفنگ میں بتایا دہشت گرد سوشل میڈیا پلیٹ فارمز آزادانہ استعمال کر رہے ہیں۔
दहशत गर्दी में मुलव्वस 19 अकाउंट्स भारत और 28 अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रहे थे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का पाकिस्तान में दफाते बनाने का मुतालबा दोहराया जाता है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी का डाटा ऑटो डिलीट हो सकता है तो दहशत गर्दी का मवाद क्यों नहीं? पाकिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन इत्तेहादी और मजबूत दीवार है। यह दीवार कमजोर हुई तो दहशत गर्दी की आग मगरिब तक फैल सकती है। ATC रावलपिंडी ने 26 नवंबर एहतजाज केस में अली मखानम के वारंट जारी कर दिए। 20 लाख मालियत के जमानती मुचलके जब्त करने का हुक्म। मुकर्ररा वक्त के बाद अली मखानम अदालत में पेश हुई, लेकिन अदालत ने अपने अहकामात बरकरार रखे। अदालत ने अली मखानम के 2 जामिनों के खिलाफ भी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। अली मखानम को तौहीन अदालत का नोटिस समाअत 15 दिसंबर तक मुलतवी। बंद कमरों में किए गए फैसलों ने सूबे को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। क़याम अमन के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर के दौरे के दौरान गुफ्तगू। कहा, ज़मज़ला के लिए सालाना 100 अरब देने का वादा किया गया था। 7 साल के दौरान सिर्फ 168 अरब रुपए दिए गए। NHP की मद में विफाक की जिम्मेदार 2200 अरब रुपए के बकाया जाते हैं। हम इस नाइंसाफी के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। तलबा सूबाई हुकूक के लिए खड़े हों। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास FBR के उमूर का जायजा। वज़ीर आज़म ने टैक्स टू GDP के हदफ 11% के हसूल के लिए कोशिशें तेज करने की हिदायत कर दी। कस्टम्स क्लियरेंस के दौरानियों को मजीद कम करने की हिदायत। टैक्स चोरों और गैर कानूनी फैक्ट्रियों के खिलाफ इकदामात में सूबाई हुकूमतों से ताउन यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन वाफडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद की मुलाकात। वज़ीर आज़म को वाफडा की ज़ेर निगरानी जारी तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। पाकिस्तान को IMF से 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की तीसरी किस्त मिल गई। ज़राए वज़ारत ख़जाना का कहना है पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली के असरात से निमटने के लिए 20 करोड़ डॉलर दिए गए। अफगानिस्तान फिर दहशतगर्द गिरोहों की आमाजगाह बन चुका है। अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी पाकिस्तान के लिए संगीन खतरा है। अफगान तालिबान के बाज़ अनासिर दहशतगर्दों की हिमायत कर रहे हैं। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से अफगानिस्तान से मुतालिक इजलास से खिताब। कहा, रवा साल अफगानिस्तान से दहशतगर्दी के बायस 1200 अफराद शहीद हुए। पाकिस्तान में 2022 से अब तक 214 अफगान दहशतगर्द मारे गए। अफगानिस्तान में दाइश, खुरासान, अलकायदा, कलदम, TTP, BLA, ATIM की महफूज पनागाहें हैं। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी के लिए जरूरी दिफाई इकदामात करेगा। अफगान शहरी बैरून मुल्क अस्करी कार्रवाइयों में हिस्सा नहीं ले सकते। तालिबान हुकूमत बैरून मुल्क जाकर लड़ने वाले अफगान शहरियों को रोके। काबुल में उलमाए किराम के इजलास में करारदाद मंजूर। अफगान तालिबान के सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह अखुंज़ादा ने किसी भी अफगान शहरी को अस्करी सरगर्मियों के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाज़त नहीं दी। अगर कोई इसकी खिलाफ वर्जी करता है तो ये नाजायज़ है। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा के इश्तियाल अंगेज बयान को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा कहते हैं प्रोपेगेंडा के जरिए हक़ाइक़ को मस्त नहीं किया जा सकता। अफ़वाज पाकिस्तान मुल्क की सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। तर्जुमान ने कहा, पाकिस्तान को अफसोस है कि भारत ने सार्क प्रोसेस को रोका हुआ है। भारत ने माजी में किसी और मुल्क के हवाले से सार्क में रुकावट डाली थी। अमेरिका ने पाकिस्तान के F-16 तैयारों की अपग्रेडेशन की मंजूरी दे दी। डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन एजेंसी ने कांग्रेस को पाकिस्तान के लिए पैकेज की इजाज़त का खत भेज दिया। दफ्तर खारिजा की जानिब से अमरीकी फैसले का खैर मकदम। अमरीकी पैकेज की मजमूई मालियत तकरीबन $686 मिलियन है। पाकिस्तान के F-16 तैयारे डाटा लिंक और एवियोनिक्स अपग्रेड हासिल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ईमान मजारी और हादी चट्टा के खिलाफ ट्रायल पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। मुतनाज़ ट्वीट केस का ट्रायल रोकने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को दोनों की अपील पर जल्द फैसला करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया, अपील पर फैसले तक ट्रायल कोर्ट कार्रवाई आगे ना बढ़ाए। जस्टिस हाशिम काकर ने कहा, ईमान मजारी और हादी चट्टा का किरदार भी बहुत अच्छा नहीं रहा। दोनों ट्रायल में एहतजाज करते रहे।
किसी सूरत मातहत अदलिया के जजेस को बेतौकीर नहीं होने देंगे। भारत के बगैर पाकिस्तान के साथ किसी ब्लॉक में शमूलियत मुमकिन है। बांग्लादेश के उमूर खारजा के मुशीर तौहीद हुसैन कहते हैं, तस्वीराती तौर पर ढाका के लिए मुमकिन है कि वो भारत के बगैर पाकिस्तान के साथ किसी इलाकाई ग्रुप में शामिल हो जाए। शायद किसी वक्त इसमें कुछ पेशरफ्त हो सकती है, लेकिन नेपाल या भूटान के लिए भारत को छोड़कर पाकिस्तान के साथ ग्रुप बनाना मुमकिन नहीं। रवां साल अगस्त में वजीर खारजा इसहाक डार ने ढाका का दौरा किया था। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की उर्दनी हम मनसब से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने उर्दनी हम मनसब को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने यूरोपीय यूनियन कमिश्नर बराए दाखिला उमूर और माइग्रेशन मैग्नस बर्नर से भी ब्रसल्स में मुलाकात की। गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम, इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ इकदामात और बाहमी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। यूरोपीय कमिश्नर का पाकिस्तान से यूरोप जाने की गैर कानूनी कोशिशों में 47% कमी पर हुकूमत को खिराज तहसीन। पाकिस्तान के इकदामात को मिसाली करार देते हुए जल्द दौरा पाकिस्तान का ऐलान किया। लाहौर के मेयो अस्पताल में मंकी पॉक्स के 2 कन्फर्म और 1 मुश्तबा मरीज रिपोर्ट। अस्पताल ज़राए के मुताबिक अबू सुफियान और सफदर नामी मरीज में मंकी पॉक्स की तस्दीक हुई। चेकअप के लिए आई 30 साला खातून में भी मंकी पॉक्स की अलामात, तस्दीक के लिए टेस्ट किए गए। तीनों मरीजों को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। जहाँ गटर खुलेंगे उसके ढक्कन नहीं लगा सकते, तो अब उसके ढक्कन में लगाना इंशाअल्लाह ताला शुरू करूँगा ताकि दूसरे बच्चे की किसी की जान नहीं जाए। कराची में सानेहा नीपा में जाँ बहक मासूम इब्राहिम के वालिद ने ढक्कन लगाओ मुहिम शुरू कर दी। शाह फैसल के मुख्तलिफ इलाकों में मोटरसाइकिल के जरिए गटर के ढक्कन पहुंचाए। कहते हैं, मेरा बेटा गटर में गिरकर दुनिया से चला गया, अल्लाह किसी और वालिदैन को ये दिन ना दिखाए। सरमा के तूफानी स्पेल ने बेघर फलस्तीनियों की मुश्किलात बढ़ा दी। तूफान बायरन के जेर असर गजा में तेज हवाओं के साथ शदीद बारिश, खैमों में पानी दाखिल हो गया। गजा के हुकाम के मुताबिक इसराइल ने इमदाद और तामीर नौ का सामान रोक रखा है। फलस्तीनी महकमा मौसमियात ने जुमे तक गजा समेत फलस्तीन भर में बारिशें जारी रहने की पेशगोई की है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, गजा अमन बोर्ड में कौन से आलमी रहनुमा खिदमात अंजाम देंगे, इसका ऐलान आइंदा किया जाना चाहिए। इसराइल की शमूलियत पर आइसलैंड का भी मौसीकी के मुकाबले यूरोविजन का बायकॉट। आइसलैंड यूरोविजन का बायकॉट करने वाला 5वां मुल्क है। स्पेन, आयरलैंड, स्लोवेनिया और नेदरलैंड्स भी मुकाबले से दस्तबरदारी का ऐलान कर चुके हैं। आइसलैंड के हुकाम का कहना है, मुकाबले में इसराइल का शामिल होना दुरुस्त नहीं, हम मौजूदा सूरत-ए-हाल के पेश नज़र पीछे हट रहे हैं। हुक्मरान रिपब्लिकन जमात 30 साल बाद मियामी में मेयर का इलेक्शन हार गई। डेमोक्रेट्स ने इलेक्शन जीत लिया। डेमोक्रेट उम्मीदवार एलिन हिगिन्स 59% वोट लेकर मेयर मुंतखब हुई। एलिन हिगिन्स पहले काउंटी कमिश्नर रह चुकी हैं। वो मियामी की 133 साल तारीख में मुंतखब होने वाली पहली खातून मेयर हैं। रिपब्लिकन उम्मीदवार को डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत हासिल थी। अमेरिकी सिक्योरिटी फोर्सेस की वेनेजुएला के साहिल के करीब कार्रवाई, तेल बरदार जहाज को कब्जे में ले लिया। खबर एजेंसी के मुताबिक कब्जे में लिए गए तेल बरदार जहाज की शनाख्त स्कीपर के नाम से हुई है। जहाज पर दहशतगर्द तंजीमों की सहूलतकारी का शुबा जाहिर किया गया है। अमेरिकी फोर्सेस की इस कार्रवाई को ट्रंप की वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो पर दबाव बढ़ाने की मुहिम तेज करने से भी जोड़ा जा रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रंप गोल्ड कार्ड के इजरा का ऐलान कर दिया। कहते हैं, कार्ड के इजरा का ऐलान करते हुए बहुत पुरजोश हूं। 1 साल पहले अमेरिका को दिवालिया करार दिया जा रहा था। अमेरिका आज दुनिया का पुरकशिश तरीन मुल्क है। अमेरिका टेक्नोलॉजी के शोबे में दुनिया की क़यादत कर रहा है। अमेरिकी स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। इक़्तिदार संभाला तो महंगाई उरूज पर थी, आज हालात यकसर मुख्तलिफ हैं। तेल और गैस की कीमतों में कमी लाकर महंगाई में इजाफे को रोका।
अंडर 19 एशिया कप कल से दुबई में शुरू होगा। ग्रुप ए में शामिल पाकिस्तानी टीम अपना इफ्तिताही मैच मलेशिया के खिलाफ खेलेगी। रवायती हरीफ भारत से दूसरा मैच 14 दिसंबर को शेड्यूल, जबकि तीसरा ग्रुप मैच मंगल को मेजबान मुत्तहिदा अरब इमारात के खिलाफ होगा। टूर्नामेंट 12 से 21 दिसंबर तक दुबई में जारी रहेगा।